हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करंट इवेंट एक्सप्लेनर। तो आज डेट है 18 फैब 2024 संडे। तो आज के संडे स्पेशल में हम पूरा हिंदू डिस्कस करेंगे। उससे पहले आई वांट टू से समथिंग कि थोड़ा लेट हो जाता है डिस्कशन डालना, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर वीडियोस, उसकी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है एंड आर्टिकल जो टेक्निकल आर्टिकल है उसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए वी आर गेटिंग लेट विद आर्टिकल्स सॉरी एनालिसिस ऑफ हिंदू, बट नेवर माइंड। ठीक है, चलते हैं हम सीधे डिस्कशन पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेशन को पूरा देख के जाना है, बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। और सबसे पहले हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज के न्यूज़पेपर में, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसमें हम FAQ सेक्शन पेज नंबर 13 पे चलते हैं। तो इसमें जो पहला आर्टिकल है वो है इज रशिया टेस्टिंग अ न्यू एंटी सैटेलाइट वेपन। पहला ये आर्टिकल है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आर्टिकल मैं समराइज करूंगा, नो डाउट। पहले आप वीडियो देखिए, वॉच इट, जो कि आपको पूरा समरी प्रोवाइड करेगा आर्टिकल के। थोड़ा टेक्निकल है तो विजुअल फॉर्म्स में देखोगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले वॉच करिए, ठीक है। Is Russia testing a new anti-satellite weapon? This provocative question has ignited a flurry of speculation and concern. The chairman of the House Intelligence Committee, Mike Turner, recently brought the media's attention to what he called a serious national security threat. He urged President Joe Biden to declassify certain information, hinting at a potential Russian space-based weapon. Not long after, the US National Security Council confirmed the existence of this space-based anti-satellite weapon of Russian origin. Let's delve into what anti-satellite weapons are. Anti-satellite or ASAT weapons are designed with a specific aim in mind: to incapacitate or obliterate satellites that are already in operation and orbiting our planet. The reason they pose such a significant threat is that they have the potential to disrupt crucial systems that countries around the world rely on, from GPS navigation to weather forecasting. But there's a legal aspect to this as well. ASAT weapons are in direct violation of the Outer Space Treaty, a multilateral agreement that explicitly prohibits the placement of weapons of mass destruction in Earth's orbit. Specifically, Article 7 of the treaty holds parties accountable for damage caused to satellites belonging to other parties, and Article 9 encourages parties to avoid harmful contamination of space. These weapons pose a significant threat to other countries' satellites and the overall peaceful exploration of space. But why does the nuclear question arise when we discuss anti-satellite weapons? Well, let's delve into history for a moment. Back in the swinging 60s, in 1962 to be precise, the United States conducted a high-altitude test known as Starfish Prime. They detonated a thermonuclear bomb 400 kilometers above ground, marking the largest nuclear test ever conducted in space. This wasn't just an eye-catching fireworks display. The detonation created an electromagnetic pulse, or EMP, which was significantly larger than expected. This EMP damaged streetlights as far as 1,500 kilometers away in Hawaii. But the effects didn't stop there. The blast also released charged particles and radiation, which distorted the ionosphere and caused bright aurorae. So, when a nuclear weapon is detonated in space, it can create an EMP and release charged particles. These can significantly damage or even destroy satellites in orbit. These nuclear tests have shown the potential for significant damage to satellites and Earth's atmosphere. So, what could be the potential impact of Russia testing a new anti-satellite weapon? As we delve into this question, it's important to understand the two primary threats posed by a space-based nuclear weapon: the electromagnetic pulse, or EMP, and the release of charged particles. An EMP is a burst of electromagnetic energy that can disrupt or even destroy electronic devices. If a nuclear weapon were detonated in space, the resulting EMP could potentially knock out any satellite within its range. This could lead to a significant loss of communication, navigation, and surveillance capabilities worldwide. The second threat, the release of charged particles, could also cause considerable damage. These particles can interfere with the normal operation of satellites, potentially causing malfunctions or even total failure. Furthermore, the debris from any destroyed satellites could pose a long-term threat to other satellites and space stations, creating a dangerous chain reaction. The potential damage could be catastrophic, affecting a significant portion of all satellites in orbit at the time. To summarize the key points we've discussed today, we delved into the alarming claim of Russia's alleged testing of a new anti-satellite weapon. This, if true, would be a clear violation of the Outer Space Treaty. We also touched on the chilling history
of nuclear space-based weapons and the potential catastrophic damage they can inflict on other satellites. The implications of Russia's alleged testing of a new anti-satellite weapon could be far-reaching and potentially devastating for the world of space exploration and satellite technology. ओके, तो यू हैव वॉच्ड द वीडियो। अब इसको मैं समराइज कर देता हूं आपको, ताकि आपकी स्टोरी बन जाए एक, एंड यू रिमेंबर द आर्टिकल। ठीक है, तो क्या है कि लेट्स बिगिन। स्टोरी क्या है कि फरवरी 14 को इसी साल चेयरमैन जो है ना, जस्ट अ मिनट, दिस पॉइंटर इज अ बिट थिकर, ओके या फाइन। तो 14 फेब को जो चेयरमैन है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स माइक टर्नर, उन्होंने मीडिया में एक इंफॉर्मेशन रखी कि एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आ रहा है। वो सिक्योरिटी थ्रेट क्या है? वो ये है, उन्होंने कहा कि रशिया सम काइंड ऑफ वेपन जो स्पेस बेस्ड है उसको डिप्लॉय करने की सोच रहा है। मतलब टर्नर जो है ना, इन्होंने ये आर्ग्यू किया है कि रशिया स्पेस बेस्ड वेपन डिप्लॉय करने वाला है अपने एयर स्पेस में। ठीक है, स्पेस बेस्ड वेपन को समझने से पहले कुछ चीज़ें जो बेसिक्स हैं इसके, मैं वो आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स गो टू द बेसिक्स। बेसिक ये है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, दिस फिगर यू कैन सी, इसमें 3 टाइप के ऑर्बिट्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, इनमें ही सैटेलाइट को प्लेस करते हैं लोग, ठीक है, सारी कंट्रीज, एंड दीज आर द वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स अराउंड अर्थ। एक तो लो अर्थ ऑर्बिट है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, उसके बाद एक पोलर ऑर्बिट भी होता है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, नॉट मेंशन्ड हियर, नो प्रॉब्लम। तो जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना, उसकी जो नॉर्मल एल्टीट्यूड, ठीक है, अर्थ के आप जहाँ खड़े हो ना, आप जिस ज़मीन पे खड़े हो वहाँ से लेके आप सीधे ट्रैवल कर जाओ 200 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स मिल जाएंगी। ठीक है, 200 किलोमीटर्स अबाव द ग्राउंड, और ये अप टू 2000 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अप टू 2000 किलोमीटर मैक्स लिमिट है इसकी। फिर मीडियम अर्थ ऑर्बिट की क्या मैक्स लिमिट है? ये 2000 किलोमीटर से स्टार्ट होता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है ना अर्थ का, दिस इज 35,786 किलोमीटर। ठीक है, इसके जो मैक्सिमम एक्सटेंड है मीडियम अर्थ ऑर्बिट की, वो 35,000 किलोमीटर तक है। और आपको पता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की कोई मैक्सिमम मिनिमम लिमिट नहीं है, इसकी फिक्स्ड डिस्टेंस है, वो इतने पे ही डिप्लॉय किया जाता है। इट इज़ 35,786 किलोमीटर। क्लियर है? आपको ऑर्बिट क्लियर है, लो अर्थ, मीडियम अर्थ और जियो स्टेशनरी अर्थ। अब जो ये रशिया वाला केस है ना, इसमें वो एंटी सैटेलाइट वेपन्स को कहाँ डिप्लॉय कर रहा है? दे आर डिप्लॉइंग एंटी सैटेलाइट वेपन्स इन लो अर्थ ऑर्बिट। 200 से 2000 किलोमीटर के बीच में जो ऑर्बिट है ना, वहां पे वो डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं। ठीक है, तो 15 फरवरी को टर्नर ने कंफर्म किया और मीडिया को इन्फॉर्म किया कि एंटी सैटेलाइट वेपन जो रशियन ऑरिजिन के हैं वो स्पेस बेस्ड डिप्लॉयमेंट सीक कर रहे हैं, मतलब दे आर ट्राइंग टू डिप्लॉय इन द स्पेस। ठीक है, फिर उसके बाद कंफर्म किया उनकी सिक्योरिटी काउंसिल ने, अमेरिका की, कि रशिया ने अभी तक डिप्लॉय नहीं किया है, डिप्लॉय करने की सोच रहे हैं बट डिप्लॉय नहीं किया है। उनकी कैपेबिलिटी डिप्लॉय करने की अभी भी क्वेश्चन में है, मतलब द ऑब्जेक्ट वॉज नॉट येट इन द ऑर्बिट, मतलब जो एंटी सैटेलाइट सिस्टम है या जो एंटी सैटेलाइट वेपन है रशिया का, वो अभी तक ऑर्बिट में डिप्लॉय नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसी खबर आ रही है कि रशिया इसको डिप्लॉय करने की सोच रहा है, कैपेबिलिटी डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी तक ऑर्बिट में डिप्लॉयड नहीं है। क्लियर है? तो अगर ये डिप्लॉय किया जाएगा ऑर्बिट में, तो ये आउटर स्पेस जो ट्रीटी है ना, एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है, उसका वायलेशन होगा। उसका वायलेशन क्यों होगा? क्योंकि वो आउटर स्पेस ट्रीटी में ये कहा गया है कि प्लेसमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन अर्थ ऑर्बिट इज प्रोहिबिटेड। मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स अर्थ की ऑर्बिट में प्रोहिबिटेड हैं, आप स्पेस में उनको नहीं डाल सकते, ये आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है। अगर रशिया ने डाला ये एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम, तो ये वायलेशन होगा OST, आउटर स्पेस ट्रीटी का। फाइन। तो रशियन कैपेबिलिटी जो डेवलप कर रहा है ना ये एंटी सैटेलाइट वेपन की, या तो ये न्यूक्लियर होगी नेचर में, या फिर ये सैटेलाइट बियरिंग कैपेबिलिटी वुड बी न्यूक्लियर पावर्ड। ठीक है, मतलब या तो वो वेपन न्यूक्लियर वेपन होगा, ठीक है, या वो ऐसी सैटेलाइट यूज करेगा, यहां पे देखिए ना आप,
इन नेचर और दैट द सैटेलाइट बियरिंग द कैपेबिलिटी वुड बी न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब उसकी सैटेलाइट बियरिंग कैपेबिलिटी है ना वो न्यूक्लियर पावर्ड होगी, मतलब न्यूक्लियर पावर का कहीं ना कहीं से यूज़ की रशिया कर रही है। फाइन, तो ये सारी रिपोर्ट्स थी। उसके बाद अब स्टोरी आप यहाँ तक क्लियर हुई आपको? सिक्योरिटी एडवाइजर ने क्या कहा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने टर्नर साहब ने क्या कहा, ठीक है। अभी तक सैटेलाइट एंटी वेपन सिस्टम डिप्लॉय नहीं किया है रशिया ने, बट डिप्लॉय करने की सोच रहा है, और ऐसी खबर है कि वो न्यूक्लियर पावर्ड होगा, ठीक है। अब फर्दर इस आर्टिकल में ये बताया गया कि एंटी सैटेलाइट वेपन्स होते क्या है, ठीक है। व्हाट आर एंटी सैटेलाइट वेपन्स? एंटी सैटेलाइट वेपन्स आर डिजाइन टू डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स दैट ऑलरेडी ऑर्बिट और आर इन ऑपरेशनल, मतलब ये जो सैटेलाइट्स है ना जो लो अर्थ ऑर्बिट में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहले से ऑर्बिट कर रही हैं, पहले से फंक्शन कर रही हैं, इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो वेपन्स होते हैं उनको एंटी सैटेलाइट वेपन्स कहते हैं, ठीक है। एंटी सैटेलाइट वेपन्स वायलेट करते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी को, क्योंकि आउटर स्पेस ट्रीटी का ये कहना है कि डैमेजिंग सैटेलाइट्स बिलोंगिंग टू अदर पार्टीज इज प्रोहिबिटेड अंडर आउटर स्पेस ट्रीटी, ठीक है। फाइन, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद रशिया के पास कैपेबिलिटी है, एंटी सैटेलाइट वेपन्स कैपेबिलिटीज रशिया के पास हैं, ये 1968 से हैं उनके पास, 1968 से हैं ये सारी कैपेबिलिटीज। और इनमें कौन सी साइंस यूज़ होती है? इसमें जो साइंस यूज़ होती है ना वो ये है कि मोस्ट ऑफ दीज वेपन्स आर काइनेटिक, मीनिंग दे डिस्ट्रॉय सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट बाय रॉकेटिंग इनटू देम और डेटोनेटिंग एन एक्सप्लोसिव नियर देम एंड ब्लोइंग देम इनटू पीसेस, ठीक है। मैं साइंस समझाता हूँ इसकी आपको। साइंस ये है कि ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रही है कोई सैटेलाइट, ठीक है। अब इस सैटेलाइट को कोई जो एंटी सैटेलाइट वेपन है ना, वो जो एंटी सैटेलाइट वेपन है वो क्या करेगा, वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को यूज करके इस सैटेलाइट में टकराएगा। जब वो इस सैटेलाइट में टकराएगा तो या तो वो इस सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है उसको स्टेबल की जगह डिस्टेबल कर देगा, मतलब उसके ऑर्बिट से हटा देगा उस सैटेलाइट को, तो वो फंक्शनल खत्म हो जाएगी, वो यूजलेस हो जाएगी। या फिर वो एंटी सैटेलाइट वेपन खुद को सैटेलाइट के पास ले जाके 100-200 मीटर की दूरी पर पास ले जाके खुद को ब्लास्ट कर लेगा, जिसकी वजह से उसके ब्लास्ट से सैटेलाइट के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा, तो सैटेलाइट खुद पे खुद पीसेस में ब्लो हो जाएगी, मतलब वो खुद पे खुद फट जाएगी, ठीक है। ये साइंस यूज होती है एंटी सैटेलाइट वेपन्स में, ठीक है। और रशिया के पास कैपेबिलिटी 1968 से है। उसके बाद इस आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि आर देयर स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स। स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स क्या होते हैं? स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं कि आप जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना उसको कैरी करके ले जाओ अर्थ के लो ऑर्बिट तक, मीडियम या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक, और वहां पे जाके एक्सप्लोजन डिप्लॉय करो, मतलब वहां पे जाके एक्सप्लोड करो। यू हैव द कैपेबिलिटी टू कॉज एक्सप्लोजन इन द स्पेस थ्रू न्यूक्लियर वेपन। मतलब आप न्यूक्लियर वेपन या आप न्यूक्लियर बॉम्ब को स्पेस में जाके फोड़ रहे हैं, मतलब 200 किलोमीटर अबव द ग्राउंड आप स्पेस में जाके एक्सप्लोजन कर रहे हैं थ्रू न्यूक्लियर। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है क्या? बिल्कुल है। 1962 में एक मिशन हुआ था स्टारफिश प्राइम, ठीक है। ये टेस्ट यूएस ने किया था, उसने एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब 400 किलोमीटर अबव द ग्राउंड जाके एक्सप्लोड किया था 1962 में, स्टारफिश प्राइम, क्लियर है। इसकी एक वीडियो है जिसमें इट्स नॉट अ रियल वीडियो क्योंकि 1962 में हुआ था, बट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, सिमुलेशन टाइप की है, जिसमें दिखाया गया है कि जब हम न्यूक्लियर वेपन्स को स्पेस में फोड़ते हैं तो कैसा दिखता है। तो अभी प्ले होगा, जस्ट वॉच इट, ठीक है। तो आपने देख लिया कैसे मशरूम टाइप का बनता है एंड हाउ इट गेट्स एक्सप्लोड। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं जो 1962 में स्टारफिश प्राइम जो एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से क्या हुआ। उसकी वजह से ये हुआ कि हवाई आइलैंड में 1500 किलोमीटर तक चार्ज पार्टिकल्स एंड रेडिएशन एमिट हुए थे ब्लास्ट के द्वारा, और उन्होंने इन 1500 किलोमीटर तक की स्ट्रीट लाइट्स को, ठीक है ध्यान से सुनो इसको, 1500 किलोमीटर की स्ट्रीट लाइट्स को मतलब डैमेज कर दिया था। किसने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जो ब्लास्ट के दरमियान निकली हुई थी, ठीक है। और इस ब्लास्ट से जो अर्थ का आइनोस्फीयर है वो भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ था या डिस्टॉर्ट हुआ था, ठीक है। स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने के आपको इफेक्ट्स मिल गए, तो ठीक है। अब रशिया ने भी ऐसा ही टेस्ट किया था 1962 वाला जो यूएस ने किया था, सेम वो उसने किया था 300 किलो टन वॉरहेड को एक्सप्लोड किया था जाके 290 किलोमीटर अबव द ग्राउंड,
ठीक है, उसने 290 किलोमीटर अबाव द ग्राउंड एक्सप्लोजन किया था और यूएस ने 400 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद ये कहा गया है कि हाउ वेल न्यूक्लियर वेपन अफेक्ट सैटेलाइट्स, द प्रिंसिपल थ्रेट टू अदर सैटेलाइट्स फ्रॉम स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर वेपन्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स एंड रिलीज ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। मतलब एक तो एंटी सैटेलाइट वेपन्स मैंने आपको समझाया, वो काइनेटिक एनर्जी, फिर वो उनका पाथ डिस्टॉर्ट कर देते हैं या पास जाके फट जाते हैं। एक और चीज़ है कि अगर आप न्यूक्लियर वेपन फोड़ते हैं, जो ये 400 किलोमीटर ऊपर फोड़ा और ये 290 किलोमीटर, इससे सैटेलाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे डिस्कस बताता हूँ मैं। आपने न्यूक्लियर वेपन ब्लास्ट किया, ठीक है, अब ये सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, आपने ब्लास्ट किया, भले ही वो हजारों किलोमीटर दूर ब्लास्ट किया हो सैटेलाइट के, बट जो ब्लास्ट से ईएमपी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलेगी, ब्लास्ट से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलेगी, ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे ब्लास्ट के बाद, वो सैटेलाइट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो सैटेलाइट पे इफेक्ट डालते हैं। फाइन, और क्या बात है, इट वुड ऑल्सो ग्रॉसली वायलेट द ओपन स्पेस ट्रीटी, ठीक है, और ओपन स्पेस ट्रीटी को भी वायलेट करते हैं अगर आप न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर रहे हैं स्पेस में, बिकॉज द डायरेक्टनेस ऑफ द एक्सप्लोजन, it could also blow a large number of satellite to pieces, more than what a conventional kinetic anti-satellite weapon might do। मतलब सिंपल है, अगर आप कोई एक्सप्लोजन न्यूक्लियर कर रहे हैं, ठीक है, स्पेस में, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आसपास की सैटेलाइट्स उसके एक्सप्लोजन के इफेक्ट की वजह से वो भी एक्सप्लोड कर जाएं, और ऐसे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। एंटी सैटेलाइट वेपन से तो सिर्फ टारगेटेड सैटेलाइट ही जाएगी, लेकिन न्यूक्लियर वेपन से आसपास की हो सकती है 15-20 सैटेलाइट चली जाएं, ठीक है, इसलिए ये भी आउटर स्पेस ट्रीटी का वायलेशन है। फिर उसके बाद ये कहा है कि जब आप एक्सप्लोड कर देंगे सैटेलाइट्स को, तो आपको पता है कि सैटेलाइट का जो कूड़ा कचड़ा है वो सारा जमा हो जाएगा उनके ऑर्बिट में, और ये जब सारा कूड़ा कचड़ा जमा हो जाएगा तो ये केसलर इफेक्ट को बढ़ावा देगा। अब ये केसलर इफेक्ट क्या है? केसलर इफेक्ट ये है कि when there is a certain level of debris in low Earth orbit, collision among themselves as well as with other satellite could produce more debris leading to a cascade। मतलब अगर कोई डेब्रिस आपने छोड़ दिया है, कोई कूड़ा आपने छोड़ दिया है ऑर्बिट में, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट में, और वो कूड़ा आपस में टकरा रहा है, ठीक है, एक दूसरे से, और वो कूड़ा एक दूसरे से टकराने के साथ साथ दूसरी सैटेलाइट जो ठीक ठाक है उनसे भी टकरा रहा है, तो जब वो उनसे टकराएगा तो इन सैटेलाइट को भी तोड़ फोड़ कर देगा, वो इनका भी जो कूड़ा होगा वो भी ऐड हो जाएगा इस डेब्रिस में, तो ये कूड़ा ऐड होता चला जाएगा और ये एक तरीके का चेन रिएक्शन बनके एक पूरा का पूरा कॉल्यूजन बन जाएगा, ठीक है, और पूरा का पूरा इट विल हैव अ कैस्केडिंग इफेक्ट, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे ही कूड़े इकट्ठे होते चले जाएंगे और नई सैटेलाइट्स बर्बाद होती चली जाएंगी, ठीक है। फाइन, अब व्हाट डज यूएस क्लेम्स इम्प्लाई? अब ये जो क्लेम किया है ना यूएस ने, इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि रशिया इज डिप्लॉइंग अ सिस्टम पावर्ड बाय न्यूक्लियर सोर्स दैट हैज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज वंस इन ऑर्बिट। तो जब रशिया की ऐसी खबर आ रही है कि वो डिप्लॉय कर रहा है ऐसे वेपन्स स्पेस में जो कि न्यूक्लियर सोर्स हैं, तो अदर कंट्रीज भी सेम स्टेप्स फॉलो करेंगी टू मैच द रशियन कैपेबिलिटी, ठीक है, तो ये एक रेस बना देगा टू डिप्लॉय वेपन्स इन स्पेस, ठीक है, which will be the violation of outer space treaty। फाइन, आर्टिकल क्लियर है, स्टोरी इज डन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू न्यू आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इसकी स्टोरी क्या है? द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। डोनर की जो अनोनिमिटी है वाज द मेन फीचर ऑफ द स्कीम, मतलब ठीक है, मैं समझाता हूं आपको। सबसे पहले आप समझो ये स्कीम क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये है कि सिंपल वर्ड्स में, यहाँ देखो ये बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, आप कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, ठीक है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है, तो आप इस बैंक के पास जाओगे, ठीक है, आपने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किए बैंक को, ठीक है, और बैंक ने आपको इंटर्न एक इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, ठीक है।
इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या लिखा होगा कि आपने 1,000 रुपये, ठीक है, बैंक को दिए हैं और इसका ये बॉन्ड है, मतलब दिस इज अ प्रॉमिसरी नोट कि बैंक हैज़ योर 1 करोड़ रुपी। तो ये फिर आप बॉन्ड लेके जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस या बीजेपी या कांग्रेस वहाँ के ऑफिस में जाके डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। जब आप ये बॉन्ड डिपॉजिट कर देंगे तो ये बैंक का कोई पार्टी का कोई आदमी जाएगा बैंक में, ये बॉन्ड दिखा के और 1 करोड़ रुपए लेके आ जाएगा घर। बस यही सिंपल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो बॉन्ड इशू होगा ना, इस पे ना तो जो कॉर्पोरेट कंपनी बाई कर रही है उसका नाम नहीं लिखा होगा, ना उसका पता होगा, ना उसकी कुछ लिमिट होगी, वो कितने भी बॉन्ड बाई कर सकता है, ठीक है। और ये बॉन्ड ले जाके वो किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता है और पार्टी वाले इसको 15 दिन के अंदर बैंक में जमा करके कैश ले सकते हैं, ठीक है। ये सारा स्कीम का प्रोसेस है। स्कीम क्लियर है आपको? अब इसी स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। क्यों बता दिया? कोर्ट ने यह कहा था कि द स्कीम वायलेट्स द सिटीजंस राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ फाइनेंस रेज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। इस सारे प्रोसेस में जो स्कीम का ये प्रोसेस है ना, इसमें कहीं भी आम जनता को ये पता नहीं चल रहा है कि ये बीजेपी के पास करोड़ों रुपया आ कहां से रहा है। ये पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि बॉन्ड में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ही नहीं है कि ये बॉन्ड कौन खरीद रहा है, फला कंपनी के नाम पे ये बॉन्ड इशू हुआ है या फला इंडिविजुअल के नाम पे ये बॉन्ड इशू हुआ है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं वहां पे ना। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिटीजंस टू नो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग द फंडिंग, मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज। अब इस स्कीम ने क्या क्या चेंजेस लाए थे इस स्कीम को डिप्लॉय करने के लिए, जो मैंने आपको समझाई थी पूरी, इस स्कीम को डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या चेंजेस लाई गई थी। एक तो सेक्शन 13A इनकम टैक्स का, इसको अमेंड किया गया था। ये पहले ये कहता था कि पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस अबाउट ₹20,000। मतलब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज के पास 20,000 से ज्यादा डोनेशन आ रहा है तो उसका सारा उन्हें रिकॉर्ड मेंटेन करना है। रिकॉर्ड मेंटेन मतलब उनको लिखना है कि ये 1 करोड़ यहां से आया, 2 करोड़ यहां से आया इतनी तारीख को, 3 करोड़ यहां से आया इतनी तारीख को, ये सारा मेंटेन करना है एज पर सेक्शन 13A ऑफ इनकम टैक्स। इस स्कीम को लागू करने के लिए उन्होंने एक अमेंडमेंट लाई इस इनकम टैक्स में, इस सेक्शन में, और ये एक्सेप्शन ऐड कर दिया कि जो कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आएगा, इस बॉन्ड के थ्रू, ठीक है, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। पहली चेंज क्लियर है। दूसरी चेंज क्या की, सेक्शन 29C जो RPA है, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसका जो सेक्शन 29C है वो ये कहता था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है जहां पे कंट्रीब्यूशन 20,000 से ऊपर जाएगा, ठीक है। मतलब जो कंट्रीब्यूशन 20,000 से ऊपर जा रहा है उसकी आपको अपनी एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट में शो करना है, ये RPA कहता था, ठीक है। अब इसको भी अमेंड कर दिया। इसका अमेंडमेंट क्या किया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कंट्रीब्यूशन आ रहा है दैट नीड नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट। मतलब जो रिपोर्ट सबमिट करेगी पॉलिटिकल पार्टीज एज पर दिस सेक्शन, उसमें जो कंट्रीब्यूशन इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आ रहा है उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या चेंज लाया, तीसरा चेंज ये लाया कि सेक्शन 182 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो कि पहले ये कहता था कि जो कंपनी, ठीक है, कंट्रीब्यूशन कर रही है पॉलिटिकल पार्टीज को, उनको अपना डिस्क्लोज करना होता था अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में, ठीक है। डिस्क्लोज मतलब इन द सेंस जैसे कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर रही है तो उनको एज पर कंपनीज एक्ट उनको अपना फंडिंग दिखाना पड़ता था अपनी रिपोर्ट में कि भाई हम मुकेश अंबानी की कंपनी बीजेपी में 1,000 करोड़ रुपए देने जा रहे हैं, इस तारीख को इतने 1,000 करोड़ रुपए दिए हमने बीजेपी को, तो दे हैव टू मेंशन इन देयर रिपोर्ट विच कैन बी सीन बाय सिटीजन्स, ठीक है। बट इस स्कीम को लागू करने के लिए इसमें भी अमेंडमेंट की। इसमें क्या अमेंडमेंट की, क्या चेंज की? आफ्टर द अमेंडमेंट इट वॉज ओनली रिक्वायर्ड टू रिवील द अमाउंट गिवन टू पार्टीज इन द फाइनेंशियल ईयर। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ कंपनीज अमाउंट रिवील करेंगे कि पहले रिकॉर्ड में कंपनीज को ये रिवील करना पड़ता था कि अमाउंट 1,000 करोड़ गिवन टू बीजेपी ऑन दिस डेट। बट इस चेंज के बाद क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल फंडिंग एक कॉलम होगा, ठीक है, उसमें टोटल फंडिंग मान लो 2,000 करोड़ गई है इस साल, पॉलिटिकल फंडिंग के अंडर 2,000 करोड़ लिखा होगा, बस उसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा। उसमें कुछ मेंशन नहीं होगा कि 1,000 करोड़ बीजेपी को गया, 500 करोड़ कांग्रेस को गया, 500 करोड़ आम आदमी पार्टी को गया, ये मेंशन नहीं है। इसको ये चेंज नए चेंज में ये डिप्लॉय किया गया, ठीक है। उसके बाद इन सब चेंजेस क्लियर हैं चेंजेस आपको। उसके बाद गवर्नमेंट ने डिफेंड कैसे किया अपना कोर्ट में कि ये सही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। ऐसे डिफेंड किया गवर्नमेंट ने ये कहा कि स्कीम वाज दैट इट अलाउड एनी पर्सन टू ट्रांसफर फंड्स टू पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर चॉइस थ्रू लेजिटिमेट बैंकिंग चैनल्स एंड हेल्प टू प्रिवेंट अनरेगुलेटेड कंट्रीब्यूशन थ्रू कैश।
गवर्नमेंट ये कह रही थी, जो मैंने आपको स्कीम समझाई थी ना कि आप बॉन्ड लेंगे जाके बैंक से, तो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम लीगल बैंकिंग चैनल के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं इस स्कीम के थ्रू, जिसमें ब्लैक मनी और कैश का यूज नहीं होगा, तो इट्स वेरी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर अ गुड कॉज। ठीक है, एक ये आर्गुमेंट था गवर्नमेंट का। दूसरा आर्गुमेंट क्या था गवर्नमेंट का कि इलेक्शन फंडिंग में जो डोनेट कर रहा है उसको गुमनाम या उसको अनोनिमिटी प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि अगर आप उसको अनोनिमिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को जिसको कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है उसकी साइड से वो पॉलिटिकल पार्टीज उससे दुश्मनी कर बैठें या उसके लिए ग्रजेस अपने मन में पाल लें। ठीक है, तो इसको भी अवॉइड करने के लिए अनोनिमिटी प्रोवाइड करना जरूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये सारे आर्गुमेंट रखे। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेशन बीच में नहीं छोड़ना है, लिसन वेरी केयरफुली। सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो ये कहा है कि भाई देखो, जो आम जनता वोट देने जा रही है ना, दे हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन दैट इज एसेंशियल फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर फ्रीडम टू वोट। मतलब जो इंफॉर्मेशन फंडिंग की है, पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो एसेंशियल है किसके लिए, वोटर्स के लिए, ताकि वो अपनी लॉजिक, अपना दिमाग लगा के अपनी वोटिंग राइट को थोड़ा फ्रीडमली तौर पे एक्सरसाइज कर पाए। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फंडिंग का ब्यूरा पूरा खोलें, आम जनता के सामने रखें, ताकि आम जनता कोई बायसनेस ना करके, ठीक है, फुल्ली फ्रीडम के साथ अपना वोटिंग डिसीजन ले पाए। ठीक है, साइंटिफिक वोटिंग डिसीजन ले पाए। तो इसलिए फंडिंग की इंफॉर्मेशन आम जनता तक जाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ये पॉइंट ऑफ व्यू है सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरा ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है ना, वो डायरेक्टली वायलेट करती है राइट टू इंफॉर्मेशन। कैसे वायलेट करती है, बाई गिविंग अनोनिमिटी टू द कंट्रीब्यूटर थ्रू बॉन्ड्स। मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन जो सिटीजन्स के पास है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, इस राइट के अंतर्गत, ठीक है, उनको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एंड दिस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑल्सो हैज अ राइट टू इंफॉर्मेशन सो दैट दे कैन एक्सप्रेस देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फुली। तो ये राइट टू इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हो उनको। कैसे नहीं प्रोवाइड करवा रहे हो, मतलब आप जो भी फंडिंग आ रही है उसको गुमनाम रख के ये इंफॉर्मेशन आप सिटीजन तक नहीं पहुंचा रहे हो, तो इसलिए वो अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फुली तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ये आर्टिकल 19(1)(a) को भी वायलेट करता है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कंपनीज एक्ट है वो भी पूरी इंफॉर्मेशन ना दिखा के कंपनीज से रिलेटेड, मतलब किसको कितनी फंडिंग गई है, किस पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी को, उसका नाम वगैरह ना शो करके, ये भी वायलेट कर रहा है वोटर्स की राइट टू इंफॉर्मेशन को। तो इसलिए हमें ये आपकी स्कीम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए हमें इसको खारिज करना पड़ेगा। क्लियर है आपको स्टोरी, सुप्रीम कोर्ट के क्या आर्गुमेंट्स हैं, फाइन, क्या क्या चेंजेस लाए हैं स्कीम ने, क्लियर है। स्कीम क्या थी सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड आपसे कोई भी कितना भी क्वेश्चन पूछ लेना, आप नहीं भूलेंगे भाई, पूरी स्टोरी बता दी मैंने आपको, ठीक है। इसी को रिवाइज करना है, दिमाग में सोचना है, फाइन। उसके बाद एक आर्टिकल है आर्थराइटिस से रिलेटेड, इस पर स्मॉल वीडियो है 2 मिनट का, टेक्निकल था थोड़ा, आर्टिकल नहीं आएगा समझ में, ठीक है। वीडियो है जिसमें जस्ट प्रोवाइड किया गया है, जस्ट वॉच इट, ठीक है। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल कर दिया था इन्होंने, तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, जस्ट वॉच द वीडियो। Can rheumatoid arthritis be prevented? A question that has baffled medical researchers for ages. Rheumatoid arthritis, a chronic inflammatory autoimmune disease, has long plagued mankind. Prevention is critical when it comes to such persistent ailments. Today, we delve into the possibility of preventing this debilitating disease. Could the answer lie in repurposing an existing drug? Drug repurposing, a promising strategy, involves exploring new therapeutic potentials of established drugs. This approach can be a game changer, offering cost effectiveness and saving valuable time usually spent on drug development. Instead of starting from scratch, we can utilize what we already have to combat rheumatoid arthritis. Imagine a familiar drug, now with a new purpose, standing as a beacon of hope. This could revolutionize the treatment landscape for rheumatoid arthritis. Imagine a drug acting as a signal, directing your immune system to respond appropriately.
The immune system, our body's defense against invaders, relies on chemical signals to coordinate its actions. These signals, or signaling pathways, are like the conductor of an orchestra, ensuring each part plays at the right time. Now picture a repurposed drug stepping in to influence these pathways, potentially preventing the onset of rheumatoid arthritis by starting the appropriate immune response. The possibilities are intriguing, yet there are concerns. Every coin has two sides, and so does drug repurposing. While the potential benefits are significant, there are valid concerns to consider. These include possible unforeseen side effects, or the drug may not prove effective for this new purpose. It's a delicate balance between risk and reward. Now let's pivot to India's approach to treating rheumatoid arthritis. The nation is making strides in the field of medical research with a keen focus on drug repurposing. Indian researchers are exploring how existing medications could be used to delay the onset of this autoimmune disease. This innovative approach could prove Fine, you have watched the video. So we have completed the FAQ section. Now we will go with the science section. साइंस सेक्शन में आज क्या न्यूज आई है? पहली जो न्यूज है साइंस सेक्शन में वो ये है कि स्मोकिंग लीव्स आर लास्टिंग एडवर्स इंपैक्ट ऑन इम्यून रिस्पॉन्स. ये तो सबको पता है ना कि स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. बाकी एक पॉइंट और ऐड कर लेना कि कैंसर के अलावा ये आपके इम्यून सिस्टम को भी इम्पैक्ट करता है. स्मोकिंग इज बैड फॉर हेल्थ, प्लीज क्विट इट टुडे. ठीक है, क्विट कर दो यार, कोई ज़रूरत नहीं है सिगरेट वगैरह पीने की. मैं एक बात बता दूं आपको, मजाक नहीं कर रहा हूँ. ये जो आप लोग नशे करते हो ना, सिगरेट दारू इज़ ऑल फाइन, करो करो, नशे ज़रूरी हैं ज़िंदगी में. बट मैं आपको इनसे बड़ा एक नशा बता दे रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही जेन्युइन है. लाइफ में बस एक बार हो जाए ना तो सिगरेट दारू के नशे भूल जाओगे. वो है सत्ता का नशा, पावर का नशा. ठीक है, जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना यूपीएससी की, ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद आपको जो पावर मिलेगी ना, वो साफ पावर पे बैठोगे. हालांकि वो पावर इतनी कोई ज़्यादा वेरी इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर पॉलिटिकल बॉसेस होते हैं. तो फिर भी थोड़ी बहुत पावर है. जब उसका आप टेस्ट लोगे ना, तो उसके बाद आपको सिगरेट दारू बहुत छोटी चीज़ें लगने लगेंगी ना, तो आपका मन करेगा कि अब ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिकल पावर में जाना है, पॉलिटिकल से प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री से यूएन लेवल पे प्रधानमंत्री का रोला बनाना है हमें, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, है ना. तो भाई ये सब इंजीरियस टू हेल्थ, फाइन, ठीक है. बट ये ना बहुत छोटे नशे हैं, बड़ा नशा करके दिखाओ. बी अ addict to power. We have the addiction of being in power. सत्ता का नशा करो भाई, ये सत्ता का. ओके, सो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी इसमें, तो वी हैव नॉट डिस्कस्ड. सेकेंड आर्टिकल इज नियरली 50% ऑफ प्रेगनेंसीज इन इंडिया आर हाई रिस्क. हाई रिस्क प्रेगनेंसी वॉज हाइएस्ट इन मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, वाइल लोएस्ट इन सिक्किम एंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. आप इसको समझ लो सिंपल तरीके से कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी मतलब क्या होता है. सिंपल वर्ड्स में ये समझो आप, जब माँ किसी बच्चे को जन्म देने जा रही है ना, तो उसमें डॉक्टर रिस्क देखते हैं, रिस्क कितनी इन्वॉल्व है. मतलब रिस्क इन द सेंस बच्चे की जान जा सकती है, या माँ की जान जा सकती है, या दोनों लोगों की जान जा सकती है, या नॉर्मल डिलीवरी होगी, इसकी रिस्क कितनी है. फॉर एग्जाम्पल एक केस आया मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने ये रिस्क एसेस करके ये पता लगाया कि 60% आर द चांसेस कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, 40% चांसेस है कि किसी एक जान को खतरा हो सकता है, एंड 5% चांसेस हैं कि दोनों लोगों की जान को खतरा हो सकता है. तो ये रिस्क है. तो इसी को इस आर्टिकल में ये कहा है कि जो रिस्क एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा हाई है इंडिया के केस में. हाई इंडिया के केस में कैसे है, मतलब मेघालय का केस देखो, मेघालय में जो 67% केसेस है ना प्रेगनेंसी के, उनमें रिस्क इन्वॉल्व है. उनमें ये रिस्क इन्वॉल्व है, या तो किसी एक की जान जा सकती है, या दोनों लोगों की जान जा सकती है, और नॉर्मल डिलीवरी का चांस थोड़ा सा कम है. ठीक है,
प्रेगनेंसी में रिस्क बहुत ज़्यादा है इंडिया के केस में, ठीक है। ये हाई रिस्क वाला केस आपको समझ में आ गया ना। अब ये रिस्क है क्यों, कॉजेस फॉर हाई रिस्क। अब ये डेटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 जो 2019-21 में हुआ था, इसके बेसिस पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। पहला रीजन सबसे बड़ा जो इस हाई रिस्क का है वो ओबेसिटी है। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, ठीक है, या द अपकमिंग मदर्स, आई वांट टू टेल देम बी हेल्थ कॉन्शियस, ठीक है। सबसे ज़्यादा हेल्थ पे ध्यान दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे ज़्यादा आपको ओबेसिटी से रिलेटेड ध्यान रखना है कि आपका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 30 है अगर, तो आपका रिस्क फैक्टर है फॉर प्रेगनेंसी। मतलब इफ़ यू आर ओबेस देन यू हैव द रिस्क फैक्टर इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एक तो ओबेसिटी वाला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, देखो हाई रिस्क फैक्टर की वजह से दूसरा फैक्टर ये है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, दूसरा फैक्टर ये है कि जो औरतें हैं ना वो शॉर्ट टर्म स्पेसिंग और एडवर्स बर्थ आउटकम्स जैसे मिसकैरेज, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ और सिजेरियन सेक्शन से डिलीवरी जो हो रही है ना, ये सारी डिलीवरी भी फ्यूचर जो मदर बनेगी ना सेकेंड टाइम, उनको सेकेंड टाइम में ये सारी चीज़ें हाई रिस्क के तौर पे परेशान करेंगी। मतलब मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में पुटअप कर देता हूँ। मान लो आपकी पहली बर्थ, जो आपकी पहला बर्थ था ना वो नॉर्मल था, ठीक है, बट ड्यू टू सम रीजंस आपने सिजेरियन वो करवा लिया, ठीक है। सिजेरियन, इट्स नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी, इट्स अ सिजेरियन डिलीवरी। तो सिजेरियन होने की वजह से अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जो आप सेकेंड टाइम बर्थ देंगी ना, तो सेकेंड टाइम में ये जो सिजेरियन आपने फर्स्ट टाइम करवाया था ये आपकी रिस्क फैक्टर में इंक्लूडेड हो जाएगा। तो मतलब ये सिजेरियन आपका कॉज बन गया एक आपकी सेकेंड टाइम डिलीवरी में एज अ हाई रिस्क फैक्टर, ठीक है। क्लियर है? आई हैव पुट इट इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। बस इतना ही है इस आर्टिकल में। कॉजेज बताए गए थे, कॉजेज में आप याद रखिए। आपको अगर मिस कैरेज हो जाता है पहली बर्थ में, या अबॉर्शन आप करवा लेती हैं, स्टिल बर्थ करवा लेती हैं, या फिर सिजेरियन करवा लेती हैं, तो ये आपको सेकेंड बर्थ की, जब आपकी सेकेंड बर्थ होगी ना, तो ये सारी चीज़ें एक कॉज की तरह यूज़ होंगी फॉर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, ठीक है। फाइन, वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल। इसके बाद जो लास्ट आर्टिकल है साइंस सेक्शन में वो है हाउ वेरियस कॉफ़ी वेरिएंट्स डिफर इन टेस्ट। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट बता देता हूँ मैं, हमारे पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कॉफ़ी सीड जो है ना वो पहली बार इंडिया में लाए थे अरब ट्रेडर्स, ठीक है। उसके बाद अरब ट्रेडर्स ने इनको प्लांट किया कहाँ, साउथ इंडिया में, श्रीलंका में। साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ, बाबा बुडान हिल्स, ठीक है, कर्नाटका में। फिर कॉफ़ी जो एक अरेबिका नाम की आती है वो हाई एल्टीट्यूड में ग्रो होती है, और एक कॉफ़ी रोबस्टा जो है वो लोअर रीचेस में ग्रो होती है, मतलब लोअर एल्टीट्यूड में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि फार ईस्टर्न स्टेट्स लाइक आसाम, मेघालय, सिक्किम, यहाँ भी कॉफ़ी उगाई जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडिया के पास एक बहुत अच्छी क्वालिटी कॉफ़ी की है जिसको हम बोलते हैं प्योर अरेबिका। इसकी डिमांड इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड लेवल पे भी काफ़ी अच्छी खासी है, और ये कहाँ ग्रो होती है, शिवरी हिल्स इन तमिलनाडु, ठीक है। फाइन, बस इतना ही था इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट। तो ठीक है, हमने साइंस सेक्शन डिस्कस कर लिया और हमने डिस्कस कर लिया FAQ सेक्शन। अब हम चलते हैं हिंदू की फ्रंट पेज पे। वी विल डिस्कस फ्रॉम द फ्रंट पेज। पेज नंबर 1 ऑन द फ्रंट पेज एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि इंडिया ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है, इंडिया वांट्स इजराइल टू बी माइंडफुल ऑफ गाजा सिविलियन डेथ्स। वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया जाके कि जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वेस्ट एशिया में उसका परमानेंट सॉल्यूशन देना पड़ेगा आपको, और इंडिया का जो सॉल्यूशन है, जो इंडिया सजेस्ट कर रहा है सॉल्यूशन, वो बहुत पहले से इंडिया कहता आ रहा है कि ये एक 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। मतलब इंडिया इज लुकिंग फॉर 2 स्टेट सॉल्यूशन फॉर वेस्ट एशिया। 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन है कि इजराइल और जो पैलेस्टीन के बीच में वॉर चल रहा है ना, इंडिया ये कहता है कि भाई इन दोनों कंट्री को आप अलग कर दो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चला था तो इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया ना, 2 स्टेट्स बना दिया। तो ऐसे ही वो ये कह रहे हैं इजराइल और पैलेस्टीन 2 स्टेट्स बना दो ना अलग अलग आप, ठीक है। मतलब इंडिया सपोर्ट्स 2 स्टेट सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वेस्ट एशिया क्राइसिस। फिर एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर हैज रीआइटरेटेड इंडियाज कॉल फॉर ए 2 स्टेट सॉल्यूशन टू परमानेंटली सॉल्व द इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। फाइन, ये बात कहाँ पे कही है जयशंकर साहब ने? ये जर्मनी में कही है एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दरमियान। ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसके दरमियान जर्मनी में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इजराइल कैजुअलिटीज कर रहा है कहाँ पे, गाजा में, उसमें वो माइंडफुल रहे कि जो सिविलियंस हैं वो ज़्यादा ना मारे जाएं या उन पे ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना हो उनके लिए ज़्यादा, ठीक है। तो फिर उनका ये कहना है कि एस जयशंकर साहब ने ये भी कहा कि इजरायली हॉस्टेजेस को रिटर्न कर दे गाजा,
और जो हमास ने अटैक किया है टेररिस्ट, उसको डिनाई किया जाए और एक सस्टेनेबल ह्यूमैनिटरी कॉरिडोर खोला जाए टू प्रोवाइड रिलीफ टू गाजा। ठीक है, क्लियर है? मतलब सबसे बड़ा जो इस आर्टिकल में एक पॉइंट है वो आपको ये याद रखना है कि अवर मिनिस्टर, ठीक है, हैज रीआइटरेटेड द टू स्टेट सॉल्यूशन फॉर इजराइल एंड पैलेस्टीनियन। इंडिया अभी भी टू स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, डन, फाइन। तो आर्टिकल यही इंपॉर्टेंट था पेज 1 में, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ऑन पेज 2 अगेन सिटी, नो इंपॉर्टेंट न्यूज, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ऑन पेज 3 स्टेट्स, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, पूरी पॉलिटिकल न्यूज़ है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेज 4 ऑल्सो फुल पॉलिटिकल न्यूज़। ठीक है, पॉलिटिकली ट्रबल्ड, कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ टाइम स्टालिन, फुल पॉलिटिकल न्यूज़। झारखंड कांग्रेस एमएलएज, उड़ीसा इलेक्ट्रिकल पार्टीज, नो। तेलंगाना असेंबली कंसेंसस कास्ट ऑफ तेलंगाना पोजीशन। ठीक है, पूरा पॉलिटिकल है, स्किप इट। पेज 5 एडवर्टाइजमेंट है, पेज 6 इज ऑल्सो एडवर्टाइजमेंट, पेज 7 इज एडवर्टाइजमेंट। पेज 8 पे जो न्यूज़ है वो भी या नो इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सारी पॉलिटिकल है। ठीक है, उसके बाद पेज 9 पे न्यूज़ है एक, जो फ्रंट पेज की न्यूज़ थी जिसमें टू स्टेट सॉल्यूशन कहा गया था, उसमें उसका फॉलोअप है। उसका फॉलोअप ये है कि गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है 28,000 से ज़्यादा सिविलियन आज अभी तक इंक्लूडिंग चिल्ड्रन मारे जा चुके हैं इसराइल की वजह से, और 2.2 मिलियन मतलब 22 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं ड्यू टू इजराइल्स अटैक ऑन गाजा। ठीक है, उसके बाद ये सारा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद ग्रीक के पीएम अटेंड करेंगे राइजना डायलॉग नेक्स्ट वीक में। ठीक है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, एटमोसफियर राहुल गांधी इन वाराणसी, नॉट इम्पॉर्टेंट, हियर ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए आप, विद नो सेंसस डेटा टू डिपेंड, गवर्नमेंट स्क्रैम्बलिंग टू एसेस पॉपुलेशन ऑफ वर्नेबल ट्राइब्स। मतलब सेंसस डेटा आया नहीं है 2021 का, तो इस वजह से जो पीएम गति शक्ति पोर्टल है, ठीक है, वो उसका यूज किया जा रहा है टू एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब्स। मतलब पीवीटीजी का जो पॉपुलेशन है उसकी एस्टिमेशन लगाई जा रही है पीएम गति शक्ति पोर्टल के द्वारा। इसलिए क्योंकि उनको भाई स्कीम्स वगैरह अलॉट करनी है ना, तो उसके लिए पॉपुलेशन डेटा होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन पेज 10 पीएम मोदी हैज इम्प्लीटेड रामराज, बीजेपी वालों ने कहा है। ठीक है, विनिंग 370 सीट्स, पॉलिटिकल होल पॉलिटिकल, अब यू कैन स्किप इट। ठीक है, ऑन पेज 11 न्यूज़ सेक्शन, यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने शोकेस किया इट्स वेपन आर्सेनल एट पोखरन। ठीक है, इस एक्सरसाइज का कोई नाम नहीं है, इट्स जस्ट कैजुअल टेस्ट, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राफेल वगैरह का यूज़ किया है तो नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, यू कैन लीव इट। उसके बाद गुलजार राम भद्राचार्य जी डिबेट, नॉट इम्पॉर्टेंट। मोदी विल बिकम अ डिक्टेटर, खड़गे साहब ने कहा है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस। बैटिंग फॉर कश्मीर विलो, ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी, नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, दिस आर्टिकल, जॉबलेसनेस राइजिंग इन कंट्री विथ एजुकेशन लेवल्स, ये एक स्टडी हुई है, इसको मैं समराइज कर देता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे देखिए आप, द कंट्रीज इकोनॉमी इज विटनेसिंग अ स्टैग्नेटिंग एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। मतलब इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रहा है, मतलब जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं। वीकनिंग एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, स्लो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रॉब्लम्स इन लेबर मार्केट सच एज लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जो एक स्टडी ने रिवील की। ये स्टडी किसने की थी? IIM लखनऊ। ठीक है, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लखनऊ। ठीक है, बाकी इस स्टडी ने क्या कहा है? इस स्टडी ने कहा है कि भाई देखो, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक तो आपके यहाँ जॉब क्रिएट नहीं हो रही हैं, इकोनॉमी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं ला रही है गवर्नमेंट, इसकी वजह से जॉब मार्केट स्टैग्नेंट है। तो अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टडी में ये कहा है कि प्रमोट लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ट्राई टू हैव अ इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब सबको साथ लेके चलना है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो प्रमोट करना है जो लेबर इंटेंसिव हो, ताकि इस लेबर को एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, और क्या कहा है? दे फाउंड दैट एग्रीकल्चरल सेक्टर दो एम्प्लॉइंग द मोस्ट यूथ कॉन्ट्रीब्यूटेड लो वैल्यू एडिशन टू द ओवरऑल इकोनॉमी। ये तो सबको पता है यार, पता ना सबको कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा 45 to 40% हमारी पॉपुलेशन डिप्लॉयड है, बट उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन शायद 16 से 18% ही है। तो यू नो, दिस मच हाई पॉपुलेशन एंड दिस मच लो आउटपुट कंट्रीब्यूशन, यही बात यहाँ पे डिस्कस की है।
उसके बाद उन्होंने बाकी स्टडी ने ये भी कहा है कि भाई देखो जेंडर डिस्पैरिटी भी है लेबर मार्केट में, ठीक है, और जो ग्रोइंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो हाईली एजुकेटेड यूथ में ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू लेस एजुकेटेड यूथ। मतलब इसको ऐसे समझो आप कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं इन कंपैरिजन टू जो कम पढ़े लिखे हैं। मतलब इट्स सॉरी फॉर माई लाफ बट इट्स आयरनी। यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको क्लियर करता हूँ। द स्टडी सेड दैट अनएम्प्लॉयमेंट राइजेज विद एजुकेशन लेवल। द अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर इलिटरेट, मतलब जो बिना पढ़े लिखे हैं, लेस एजुकेटेड क्लास, जो बिना पढ़े लिखे हैं जिनको कम ज्ञान है वो सिर्फ 0.5% ही अनएम्प्लॉयड हैं। बाकी जो पढ़े लिखे हैं हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स वो 14% अनएम्प्लॉयड हैं एज पर रिपोर्ट, ठीक है, 2020-21। मतलब पढ़े लिखे लोग अगर 100 हैं उसमें से 14 लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, और अगर अनपढ़ लोग 100 हैं उसमें से सिर्फ 0.5 तो आधा इंसान तो नहीं काटेंगे ना, तो उसमें से सिर्फ एक ही आदमी अनएम्प्लॉयड रहता है, बाकी 99 के 99 कहीं ना कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो भाई एजुकेशन लेने के बाद भी जॉब नहीं मिल रही है। बाकी एक और चीज़ कहा है कि ओवरऑल फीमेल फोर्स वर्क फोर्स है जो पार्टिसिपेशन है फीमेल का वो 32% है इन केस ऑफ इंडिया एज पर 2020-21 रिपोर्ट, ठीक है, फाइन, ठीक है। उसके बाद साइंस सेक्शन वी हैव डिस्कस, एफएक्यू हमने डिस्कस कर ही लिया है, प्रोफाइल्स में पर्सनैलिटीज़ के बारे में आया है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पेज 15 बिजनेस सेक्शन, कॉटन प्राइस राइज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, 21,000 करोड़ डबल कर दिया है फंडिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए गवर्नमेंट ने, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एमडी जावा कोई ज़रूरत नहीं, कोको कोला कंपनी, अच्छा। एट वर्ल्ड लेवल पेज 16 क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि यूक्रेन विड्रॉज फ्रॉम अद्विका। इस सिटी का नाम याद रख लो, अद्विका एक सिटी है, आपको फाइंड आउट करना है ये कौन सी सिटी है, कहाँ पे है, यूक्रेन में है कि रशिया में है, ठीक है, अद्विका, ट्राई टू फाइंड इट आउट, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इस पेज पे नथिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज द स्पोर्ट्स सेक्शन एंड न्यूज़ इन फ्रेम, ठीक है, स्पोर्ट्स सेक्शन डिस्कस नहीं होता जनरली। अच्छा, ये न्यूज़ इन फ्रेम, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, न्यूज़ इन फ्रेम में क्या है, एक बहुत ही अजीब और गरीब चीज़ हुई है कि कश्मीर में जो इस साल की सर्दियां थी ना उनमें स्नोफॉल ही नहीं हुई है भाई, दिस इज अ क्लाइमेट चेंज फिनोमिना, वहाँ पे स्नोफॉल नहीं हुई है। उसी के फॉलोअप में ये आर्टिकल है, ठीक है, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो बनाया मैंने, पूरा एक्सप्लेन किया है क्या कॉजेज़ हैं, ठीक है, क्यों स्नोफॉल नहीं हुआ है, क्या इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ है, ठीक है, कश्मीर को कैसे बचाना है या फिर कैसे रेनफॉल करवानी है वहाँ पे, सारा कुछ डिस्कस्ड है, जस्ट वॉच अ वीडियो, ठीक है। Have you ever wondered why the snow hasn't been falling as it used to in Kashmir and Himachal Pradesh? Despite the chills of December and January, these regions have been unusually dry this winter. Typically, these areas are blanketed with snow, transforming into a picturesque winter wonderland. But this year, the snow has been surprisingly absent. Now, it's not just about the cold. For snow to fall, we need two main ingredients: adequate moisture and temperatures 0 degrees or less. We've had the cold, but the snow, not so much. Besides, a dense fog has been lingering over the plains of northwest India. So, what's behind this unsnowy situation? 3 major factors are at play here: a drastic fall in western disturbances, prevailing El Niño conditions, and the absence of a strong jet stream. Each of these plays a crucial role in the weather patterns that bring snowfall to these regions. So, 3 key factors, western disturbances, El Niño, and the jet stream, are playing a significant role in the lack of snowfall. But what does this mean? Let's dive deeper into these 3 reasons and understand how they affect snowfall. Western disturbances, originating in the mid-latitude regions, travel thousands of miles to bring rain to northern India. In winter, these disturbances dissipate fog, increase sunshine, and when temperatures are low, result in snowfall. The melting snow then contributes to the water availability in the Ganga, Indus, and Yamuna. Enter El Niño conditions, which can alter the course and intensity of these disturbances. Now, let's talk about jet streams. These powerful winds, traveling at about 7.5 miles above sea level, carry the western disturbances. But without moisture, they've been enhancing the cold over North India. And with the absence of a strong jet stream, the delivery system for these disturbances is disrupted. Therefore, the absence of these climate phenomena
has caused a drastic change in the snowfall pattern in Kashmir and Himachal Pradesh. We've understood the reasons behind the lack of snowfall, but what are the implications? Let's take a moment to revisit the three major reasons: a drastic decrease in western disturbances, prevailing El Niño conditions, and the absence of a strong jet stream. Each of these factors has played a significant role in the absence of snowfall over the traditionally snowy regions of North India. The implications of this remarkable change are far-reaching. The lack of snowfall directly affects the local ecology, disrupting the natural balance and impacting the lives of countless species. It also has a profound effect on agriculture, with the potential to harm crop yields and the livelihoods of farmers in the region. Lastly, the absence of snowfall affects water availability. The melting snow from the mountains feeds into major rivers such as the Ganga, Indus, and Yamuna, providing a vital water source for millions. As the snowfall decreases, so do our chances of preserving these beautiful landscapes as we know them. It's a reminder that climate change is real, and it's happening right now. ठीक है, वीडियो देख लिया आपने कश्मीर से रिलेटेड, पूरा पेपर डिस्कस हो चुका है, डोंट वरी, वेरी इलैबोरेटली. अगर सेशन बीच में छोड़ के गए हो तो शायद नहीं आया होगा समझ में, बट इफ यू हैव अटेंडेड द सेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड द हिंदू वेरी इलैबोरेटली, संडे स्पेशल. अब आपको हिंदू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वीडियो के फॉर्म में, विजुअल्स के फॉर्म में सारा कुछ याद रहेगा. सो वी हैव कंप्लीटेड इट. थैंक यू सो मच गाइस.